हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारे इस सुपर मैथमेटिक्स वीडियो में आपका स्वागत है और आनंद उठाइए हमारे इस सुपर मैथमेटिक्स वीडियो। दोस्तों, एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो का। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स में विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स चैप्टर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। What are shapes? First one is, what are shapes? A shape is a geometrical figure that can be described with mathematics. One way to classify shapes is to describe a bigger shape that the shape fit inside of. For example, two-dimensional shapes like circles will fit inside of a flat plane. Three-dimensional object like cube will not fit inside of a plane because they are not flat. तो क्लियर हो गया होगा कि शेप्स क्या होते हैं। A shape is a geometrical figure that can be described with mathematics. One way to classify, there are two types of shapes, two-dimensional shape and three-dimensional shape. Okay? So different shapes are two dimensions, 2D shapes and 3D shapes. There are two types of shapes in the mathematics. One is two-dimensional shape and second one is three-dimensional shapes. So what do you mean by two-dimensional shapes and three-dimensional shape? Two-dimensional shapes means in which only length and breadth is required, but for three-dimensional shape in which length, breadth and height all three are required. So these are three-dimensional shape. I want to tell you once again, two-dimensional figure. Figures having length and breadth are known as two-dimensional figures or 2D figures. For example, polygons and circle. So you are seeing the just here, this is a first one figure is triangle, this is two-dimensional shape, and this is quadrilateral, this is pentagon, this is next one figure. How many sides here? 1 2 3 4 5 6 means hexagon, and this is once again heptagon, octagon, nonagon. These all are two-dimensional figure, two-dimensional shapes. So I think that the concept of two-dimensional shapes or figure has been clear. Okay, now three-dimensional shape. A 3D shape is a solid which encloses a volume and has length, breadth and height. ऐसे फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो और जिसका वॉल्यूम हो, उसे हम क्या कहेंगे? थ्री डायमेंशनल शेप. So these are the example like that cone. Cone is a three-dimensional shape, and this house is also a three-dimensional shape. This is a earth. Earth is a three-dimensional shape, and this is a shape of cuboid. So this is once again three-dimensional shape. Now face. What about you know face? Face क्या होता है? The part of the shape that is flat or curve फेस कहा जाता है. किसी भी
फिगर का जो पार्ट होता है या फिर फ्लैट कर्व होता है उसको हम शेप कहते हैं। क्यूब हैज 6 फेसेस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए क्यूब, देन दिस पार्ट इज ए वन फेस, दिस इज इन फ्रंट फेस, दिस इज टॉप फेस, and just behind of this in front face you will get back face, and just left side face this one, so this is left face and this is the right face and this is top, and now here is the bottom face. So there are total 6 faces in this cube. So I think that the concept of face is clear. Now edges. What do you mean by edges? The part of the shape where two faces meet. For example, cube has 12 edges. What do you mean by edges? This line is known as edge of this cube. This is second edge, this is third edge, this is fourth. So one face has 4 edges. Similarly, this is 5, 6 and 7 is. Now this is 8 and behind of this 9 and just bottom 10, and this is 11 and here is 12. So total edges are 12. Total edges in the cube are 12. I think that I want to tell you once again. This in front face there are 4 edges. 4 edges, ठीक है। तो इसमें जो सामने वाला फेस है इसमें कुल मिला के 4 एजेस हैं। इसी तरह इसके बैक में भी 4 होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। अब आप देखिए ये एड्स टॉप वाला अगर फेस देखें तो ये एड्स काउंट हो चुकी है और ये भी काउंट हो चुका है। अब बचा है ये साइड और ये साइड, तो 2 एड्स बची, तो 8 and 2 कितना हो गया? 10। इसी तरह से जब हमने ये वाला फेस और बैक वाला फेस लिया था तो ये और दोनों एड्स काउंट हो चुके हैं। अब बचा केवल ये फेस और इसके बिहाइंड में ये हाइड जो फेसेस है वो उसके पास में ये एड्स छुपा हुआ है, तो 2 ये एड्स हो गए, तो टोटल हो गए 10 and 2 12 एड्स इन दिस क्यूब। नाउ वर्टेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय वर्टेक्स? द पार्ट ऑफ द शेप where 3 or 4 edges meet. For example, let us, this is a pyramid, has 4 edges. You can see that this is a triangular part meet in here. So this is known as vertex, and this is another triangle. You can see that this is triangle. So this triangle is meet also here. So this is known as edge, and this is also known as vertex, and this is also not known as vertex, and this one is also vertex. तो vertex क्या होता है? जहां पर edges का meeting होता है, mid point of edges is called vertex. इसी तरह से अगर हम यहाँ पे क्यूब में देखेंगे तो ये फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड एंड फोर्थ वर्टेक्स, 5 and 6 वर्टेक्स, 7 और इसके बिहाइंड में जो एक होगा वो टोटल 8 वर्टेक्स होंगे इस क्यूबॉइड में। तो यहाँ पर भी 4 वर्टिसेस हैं, सो दे आर वर्टिस नोन एज वर्टेक्स और वर्टिसेस। देयर आर 4 वर्टिसेस and this one is 1 vertex, this is the second vertex, this is third and this is the fourth vertex, and total there are 4 vertices in this pyramid. Now view. How can you see a geometrical shape? So when we see here, then this is known as top view, and just we see here from this side, then this is the side view, this is also side view, and this is known as the front view. जो सामने से दिखाई पड़ता है वो फ्रंट व्यू, जो साइड से दिखाई पड़ता है वो आपका साइड व्यू होगा, और जो ऊपर से दिखाई पड़ता है वो आपका टॉप व्यू होगा। तो ये हो गया व्यू। नाउ ऑब्जेक्ट टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू फॉर दिस ज्योमेट्रिकल शेप,
And front view, this is the front view. You can see that this is a rectangular part. आप रेक्टेंगुलर पार्ट देख पाएंगे सामने से इस ज्योमेट्रिकल शेप में. एंड साइड व्यू में भी आप रेक्टेंगुलर पार्ट ही देख पाएंगे. तो ये आपका हो गया साइड व्यू. अगर आपको ऑब्जेक्ट से टॉप, साइड और फ्रंट व्यू निकालने को कहा जाएगा तो आप इस तरह का ज्योमेट्रिकल शेप बनाएंगे. सो दिस इज द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू. नाउ पिरामिड. व्हाट डू यू मीन बाय पिरामिड? पिरामिड क्या होते हैं? Pyramids have one face with at least 3 edges. The faces meeting these edges are all triangle. इस टाइप का जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा उसे हम पिरामिड कहेंगे. एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगल है और ये सेकेंड ट्रायंगल है. इसके बैक में भी एक ट्रायंगल है और लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में भी एक ट्रायंगल है. इन ट्रायंगल को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर आपका एक बॉटम भी पॉलीगॉन है. ये पॉलीगॉन कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है. तो इस टाइप का बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो मीटिंग पॉइंट है वो ट्रायंगल ही होंगे. जो आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग जो फेसेस होंगे वो आपके सारे के सारे ट्रायंगल ही होंगे. तो इस टाइप के जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप होंगे दे आर नोन एज पिरामिड. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द बेस. बेस इज ए स्क्वायर. सो दिस पिरामिड इज नोन एज स्क्वायर बेस्ड पिरामिड. और अब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे तो आपके जो मीटिंग वर्टेक्सेस होंगे वो तो आपके ट्रायंगल ही होंगे. हर पिरामिड में ट्रायंगल होंगे, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा. बेस चेंज हो सकता है. तो आप देखेंगे यहाँ बेस क्या है? ट्रायंगल. तो इस पिरामिड को क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड. और यहाँ पर आप देखें तो बेस क्या है? हेक्सागोन. तो और यहाँ पर आपके सारे के सारे ट्रायंगल ही होंगे. तो हेक्सागोनल बेस्ड पिरामिड इसे हम कहेंगे. तो दीज आर द पिरामिड्स. नोट, ये याद रखना है, पिरामिड्स गेट देयर नेम्स फ्रॉम द शेप ऑफ देयर बेस. जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, इस बेस के आधार पर इस पिरामिड का नाम होगा. यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो गया. यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड हो गया. और ये हेक्सागोनल बेस्ड पिरामिड हो गया. देयर आर मेनी मोर पिरामिड्स देन दीज वंस शोन. यहाँ पे तो कुछ ही दिखाए गए, बहुत सारे पिरामिड हो सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है? These joining points are only triangle and this have a common vertex and they are all triangle, but base should be different. Now prism. What do you mean by prism? Prism have two identical parallel faces joined to one another by rectangles. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रिज्म रखे हुए हैं. ये आप देखिएगा तो ये आइडेंटिकल फेस है. ये आइडेंटिकल फेस है. इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो ये और इसके अपोजिट में जो होगा वो एक जैसा मीन्स आइडेंटिकल. ये जहाँ जैसा फेस है उसके अपोजिट में भी आइडेंटिकल एक जैसा ही फेस. तो इसे हम प्रिज्म कहेंगे. ये क्यूबॉइड रखा है, इस फेस का अपोजिट फेस कैसा होगा? सेम टू सेम होगा. तो यहाँ पे ये आइडेंटिकल हो गया. टॉप और बॉटम कैसे होंगे? दोनों सेम टाइप होंगे तो ये आइडेंटिकल हो गए. लेफ्ट और राइट कैसे होंगे? मीन्स साइड व्यू कैसे होंगे? वो भी आइडेंटिकल होंगे. इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये मैच बॉक्स टाइप का एग्जांपल है, मीन्स क्यूबॉइड ही है. तो ये ऑल आर द आइडेंटिकल फेसेस. अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल फेसेस. So these type all object are known as prism. ये भी आपका प्रिज्म हुआ. ये फेस है और इसके बैक में जो फेस होगा वो आइडेंटिकल होगा. अब आप ये साइड व्यू देख सकते हैं. साइड व्यू इधर और लेफ्ट साइड व्यू होगा वो सेम होगा. तो ये भी आपका आइडेंटिकल होगा. सो दिस इज नोन एज प्रिज्म. Once again I want to tell you that
prism have two identical and parallel faces joined to one another by rectangles. तो ये सारे के सारे रेक्टेंगल होंगे, तो रेक्टेंगल से ये ज्वाइन होंगे, इसीलिए इसे हम कहेंगे प्रिज्म. Polyhedron. There are three types of polyhedron. One is convex, second is concave, and third one is regular. So now we will learn about these polyhedron. So first of all, convex polyhedron. A polyhedron is said to be a convex if its surface does not intersect itself and the line segment joining any two points of the polyhedron is contained in the interior or surface. तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, जिसमें वर्टेक्स आउटसाइड की तरफ होते हैं. तो इसे हम क्या कहेंगे? जिसके वर्टेक्स बाहर की तरफ खींचे हुए होते हैं, जिसके कॉर्नर बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, उसे हम पॉलीहेड्रॉन कॉन्वेक्स कहते हैं. कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन. ठीक है. इसके बाद कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? जिसमें जो फेसेस होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं. तो ए पॉलीहेड्रॉन इज सैड टू बी कॉनकेव इफ इट्स सरफेस intersect itself and the line segment joining any two points of polyhedron is contained in the interior or surface. मतलब जो अंदर की तरफ अगर कोई भी वर्टेक्स आता है या कोई भी कॉर्नर आता है तो हम उसे कहेंगे कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन. आप देखिए ये फेस अंदर की तरफ चला गया, तो ये अंदर की तरफ चला गया, तो ये आपका कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन हो गया. ठीक है. अगर इसी को हम बाहर की तरफ बना दें, मीन्स पूरा बना दें, कंप्लीट कर दें, स्फीयर कंप्लीट कर दें, तो ये कॉनकेव नहीं होगा, फिर ये कॉन्वेक्स हो जाएगा. तो यहाँ पे कॉनकेव मीन्स जिसमें आइदर वन, कम से कम एक वर्टेक्स या एक फेस इनसाइड की तरफ हो, तो उसे हम कहेंगे कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन. Now regular polyhedron. A polyhedron is said to be a regular if its faces are made up of a regular polygons and the same number of faces meet at each vertex. तो इस तरह के हम पॉलीहेड्रॉन को रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कहेंगे. तो आप ये एग्जांपल देख सकते हैं. यहाँ पर आप देखिए कि ये जो साइड्स हैं वो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एजेस आर इक्वल फॉर दीज पॉलीगॉन्स. ये पॉलीगॉन्स क्या है? 1 2 3 4 5 मीन्स दिस इज ए पेंटागन. दिस इज अगेन ए पेंटागन, दैट इज रेगुलर पेंटागन, एंड रेगुलर पेंटागन इज ज्वाइंट ईच अदर, then we will get a regular polyhedron. Clear? So this is a polyhedron. This is the example of polyhedron. I want to tell you once again, a polyhedron is said to be a regular if its faces are made up of a regular polygons and the same number of faces meet at each vertex. ठीक है. तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे इस वर्टेक्स में कितने पॉलीगॉन्स मिल रहे हैं? 3, 1 2 3. यहाँ पे देखिए इस वर्टेक्स में कितने पॉलीगॉन मिल रहे हैं? 1 2 3. इस वाले वर्टेक्स में देखिए तो 1 2 3, ये वर्टेक्स है ना, तो कितने पॉलीगॉन्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं? 3. तो यहाँ पे सभी वर्टेक्स पे सेम नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स मीट करेंगे. तो दिस टाइप ऑफ polyhedron is known as regular polyhedron. Now Euler formula. What do you mean by Euler formula? Euler is a mathematician. He gives a concept for verification about the vertex, faces and edges of a three object, that is 3-dimensional shape. उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिससे ये वेरीफाई किया जा सकता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे.
अगर इस कॉन्सेप्ट को वो फॉलो करता है तो वो 3 डायमेंशनल शेप बनाया जा सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू मेड इट। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या किया था, द नंबर ऑफ फेसेस, द नंबर ऑफ वर्टिसेस v and the number of its e of a simple convex polyhedron are connected by the Euler formula. The Euler formula can be done by 2 ways. Number 1, f plus v equal to e plus 2, and second one is f plus v minus e equal to 2. For example, if number of faces 8, number of faces 6, number of vertex 8, and the total is 12, then this is satisfied, means 6 plus 8 14, and this is also 14. Similarly here 6 plus 8 14 minus 12, that is 2, and 2 is just in the right hand side. तो इसे आयलर फॉर्मूला कहते हैं। इस पर एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, सो कीप इन माइंड आयलर फॉर्मूला, दैट इज f plus v equal to e plus 2, otherwise f plus v minus e equal to 2. Once again, let's try to understand it with an example. Verify Euler formula for the following. Let's here, this is a 3-dimensional shape, that is cuboid. Okay. Now here, how many total faces? Total faces are 6. 1, 2, 3, and opposite 4, 5, and opposite 6. So total faces are 6. Total is 12. How can you count it? 1, 2, 3, 4, and 4 just opposite. After that 5, 6, and then ये 7, और इसके अपोजिट में होगा वो 8, और इसके बाद में जो इधर साइड्स पे होगा 9, और उधर में होगा 10, 11 और 12. तो टोटल केसेस हो जाएंगे, टोटल एजेस हो जाएंगे 12. ओके, I want to tell you once again how can you count total faces. 1, 2, 3, 4. तो टोटल 4 एजेस हो गए, साइड्स भी कह सकते हैं, और इसके अपोजिट में कितने हो गए 4. तो 4 और 4 कितने हो गए 8. ओके, अब इसके बाद ये तो काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, ये काउंट नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 10. इसके बाद ये काउंट हो चुका है, ये काउंट हो चुका है, क्योंकि जब आपने ये फेस लिया था तो ये इंक्लूड था. अब ये काउंट नहीं हुआ, तो ये 11 और इसके इधर बगल में होगा वो 12. सो टोटल इज 12, एंड वर्टिसेस टोटल आर 8. हाउ कैन यू काउंट? 1, 2, 3, 4, एंड जस्ट अपोजिट 4. So 4 and 4, 8. So total vertices are 8. Now then by Euler formula is f plus b minus e equal to 2. So taking left hand side and now putting the values of f, e and v. So f is how much? 6, and v is 8, and is 12. So we will get 8 plus 6 plus 8, 14. 14 minus 12, how much? 2. So we will get 2, and this is the right hand side. This is the right hand side of the Euler formula. So hence it is verified. Okay. Now mapping. How can you make a map? How can you make a map? A map is a scale graphic representation of a portion of the Earth's surface. I want to tell you once again, a map is a scaled graphic representation of a portion of the Earth's surface. Means किसी भी भाग के, अर्थ के किसी भी भाग के पार्ट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना मैपिंग कहा जाता है. ग्राफ बनाना मीन्स एक पिक्चर बनाना. द स्केल ऑफ द मैप परमिट्स द यूजर टू कन्वर्ट डिस्टेंस ऑन द मैप टू डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड और वाइस वर्सा. मतलब किसी भी अर्थ के पार्ट को बनाने के लिए आपको स्केल की आवश्यकता होती है. तो आप वहां अपने ग्राफ पेपर पे स्केल इंडिकेट करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर.
Okay, so we will take it the scale. The eligibility to determine distance on a map as well as on the earth surface is an important factor in planning and executing military missions. तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे मैपिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस shown on the map are proportional to the actual distance on the ground। तो जो हम डिस्टेंस लेते हैं जो ग्राफ में मैप में शो की जाती है वो प्रोपोर्शनल होती है जो एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड पे होती है। While drawing a map, we should take care about number 1, how much of actual distance is denoted by 1 millimeter or 1 centimeter in the map। मीन्स मैंने बताया कि स्केल लेना होता है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर लिया गया है वो उसको ध्यान में रखना है। इट कैन बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर और 10 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। अगर हमें बहुत बड़े पार्ट का मैप बनाना है तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, और भी अधिक लिख सकते हैं। दिस स्केल कैन वेरीफाई फ्रॉम मैप टू मैप बट नॉट विद इन द मैप। एक ही मैप में ये अलग नहीं हो सकती, लेकिन और अदर मैप तो अगर कई मैप बनाए गए हैं तो उसमें डिफर कर सकती है, हम कुछ भी स्केल ले सकते हैं। Now here is some 3-dimensional shape is given and name is also given and total number faces I want to tell you in this. So this is a tetrahedron. Tetrahedron means total faces here are 4, तो इसको हम टेट्राहेड्रॉन कहेंगे। तो नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे 4, 1, 2, 3 और एक इसके अपोजिट में। तो यहाँ पे जो 1 फेस है वो किस टाइप का है, या बेस इसका है वो किस टाइप का है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 3 साइडेड, 1, 2, 3 और ये आपका बेस हो गया। सो नंबर ऑफ फेसेस एट ईच वर्टेक्स इज 3, नंबर ऑफ वर्टिसेस 4। हाउ कैन यू काउंट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ओके, सो ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4 फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस इज 6। ओके, so you can count here 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 to total आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। ये आपका मैप है, इसका नेट बनाया हुआ है, तो नेट में आप काउंट कर सकते हैं कितने फेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं, कितनी एजेस हैं। क्यूब the total 6 faces and all faces type square, so 4 sides square and number of face at each vertex, हर एक वर्टेक्स पे मिलने वाले कितने यहाँ पे स्क्वायर है 1, 2, 3। यहाँ पे देखेंगे तो इस वर्टेक्स पे 1, 2 और एक बॉटम 3, तो इस तरह से हर वर्टेक्स पे 3 फेसेस ज्वाइन हो रहे हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। नंबर ऑफ साइड्स 12 हो जाएंगे। ये इसका नेट हो गया, नेट ऑफ क्यूब। नाउ octahedron, octahedron means number of faces here 8 and each faces type is equilateral, तो हर फेसेस पे 3 इक्विलैटरल ज्वाइन हो रहे हैं। आप देख सकते हो, या इस वर्टेक्स पे देखें तो 1, 2, 3, इस वर्टेक्स पे देखेंगे तो 1, 2, 3, so there are 3 vertex, 3 triangles at each vertices and number of faces at each vertex is 4. There are number of vertices are 6 and total edges are 12 and the net of this tetrahedron is this type. Okay, now this is dodecahedron, dodecahedron। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस 12 होंगे एंड रेगुलर पेंटागन इज ए ईच साइड, मतलब यहाँ पे हर एक पेंटागन है 1, 2, ये सभी पेंटागन, ये पेंटागन है, ये भी पेंटागन है, ये भी पेंटागन। तो इस तरह से नंबर ऑफ फेस ईच वर्टेक्स इज 3, यहाँ पे देखेंगे तो 3 पेंटागन इस वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहे हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 सभी जगह 3, 3 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 20 एंड नंबर ऑफ एजेस इज 30। इसका नेट ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आइकोसाहेड्रॉन, मीन्स यहाँ पर इसके 20 फेसेस होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3 साइडेड, नंबर ऑफ फेसेस इज 5
मीटिंग एट ईच वर्टेक्स एंड टोटल इज 30, नेट इसका ये हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेट ऑफ ए शेप। अब ये नेट क्या होता है? ए नेट इज द शेप दैट फॉर्म बाय अनफोल्डिंग ए 3-dimensional figure. In other words, a net is composed of all of the faces of the figure. तो आप देख सकते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को अगर हम ओपन कर देंगे तो ओपन करने से जो शेप मिलेगा वो उसका नेट होता है, या फिर ओपन नेट को अगर हम उसे क्लोज फोल्ड कर देंगे तो हमें जो शेप मिलेगा वो आपका नेट कहा जाता है। तो ये आपका देखिए क्यूबॉइड है और इसको जैसे ही आप फोल्ड करेंगे तो एक बॉक्स बनेगा, वो आपका क्यूबॉइड होगा। इसी तरह ये भी क्यूब का नेट है और ये सभी नेट दिए हुए हैं। तो these are the nets. Now summary of this chapter: the circle, the square, the rectangle, the equilateral the quadrilateral and the triangle are example of plane figure. The cube, the cuboid, the sphere, the cylinder, the cone and the pyramid are example of solid shapes. Now plane figure are of 2-dimensional and the solid shapes are of 3-dimensional, that is 3D. The corner of solid shapes are called its vertices. मैंने आपको पहले भी बताया कि जो vertices होते हैं वो corners होते हैं। The line segment of its skeleton are its edges. जो line segment से मिलके बनता है वो इसके edges होते हैं, and its flat surface are its faces. A net is a skeleton outline of the solid that can be folded to make it. The same solid can have several type of nets. Solid क्या होता है? Solid shapes can be drawn on a flat surface like paper. Realistically we call this, okay? Realistically we call this 2D representation of a 3D solid. Next is 7 number. 2 types of sketches of a solid are possible. A oblique sketch does not have proportional length. Still, it conveys all important aspects of the appearance of the solid. किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का ऑब्लिक स्केच खींचा जा सकता है, लेकिन उसकी जो लेंथ होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, एक्चुअल नहीं होगी। एन आइसोमेट्रिक स्केच इज ड्रॉन ऑन ए आइसोमेट्रिक डॉट पेपर, ए सैंपल ऑफ विच इज गिवन एट द एंड ऑफ दिस बुक। इन एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द सॉलिड द मेजरमेंट्स कैप्ट प्रोपोर्शनल। आप देख सकते हो कि आपकी क्लास 8 में जो लास्ट पेज पर दिया गया है वो आइसोमेट्रिक ग्राफ पेपर है जो डॉट डॉट से मिलके बना होता है। उसको मिलाने से जो ऑब्लिक जो स्केच बनता है उसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक स्केच। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स इज वेरी यूजफुल स्किल। यू शुड बी एबल टू सी हिडन पार्ट्स ऑफ द सॉलिड शेप। अगर कोई 3D शेप्स रखा है तो आप एक ही जगह बैठे बैठे उसे पूरा नहीं देख सकते, बल्कि उसका इमेजिन कर सकते हैं कि इसका बैक पार्ट कैसा होगा। तो ये विजुअलाइजिंग शेप इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को कॉन्सेप्ट दिया गया है। डिफरेंट सेक्शन ऑफ ए सॉलिड कैन बी व्यूड इन मैनी वेज। वन वे इज टू व्यू बाय कटिंग और स्लिसिंग द शेप which would result in the cross section of the solid. Another way is by observing a 2D shadow or of a 3D shapes. And the third way is a look at the shape from different angle. The front view, the side view and the top view can provide a lot of information about the shape observed. तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।